صدائے حق نیوز، حق و صداقت کی بے باک آواز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں آفتاب اظہر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں صدائے حق نیوز کا ہفتہ واری پروگرام تبصرہ۔ پی ایف آئی یعنی پاپولر فرنٹ آف انڈیا پر پابندی کی خبر سننے کے بعد میں کشمکش میں تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ پابندی کس تنظیم پر لگی ہے۔ پہلے تو میں نے سمجھا کہ شاید RSS اور بجرنگ دل پر پابندی لگی ہے، پھر مجھے بتایا گیا کہ نہیں، پابندی PFI پر ہی لگی ہے۔ میں نے کہنے والے سے کہا کہ خبر دھیان سے پڑھو، شاید تم RSS کی جگہ PFI پڑھ رہے ہو۔ کہنے والے نے کہا کہ نہیں، PFI پر ہی پابندی لگی ہے۔ میرے لیے یہ یقین کرنا مشکل تھا۔ میں نے YouTube پر نیوز سرچ کی تو گودی میڈیا چینلز پر جیسے ہولی اور دیوالی کی خوشیوں کا جشن منایا جا رہا ہو۔ PFI پر بین، پاکستان بے چین، PFI کا گیم اوور جیسی ہیڈ لائنز دیکھنے اور سننے کو ملی۔ خیر، یہ تو گودی میڈیا چینلز تھے جن کو بات کا بتنگڑ اور رائے کا پہاڑ بنانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے، لیکن کچھ صحیح اور سٹیک خبریں دکھانے والے چینلز پر بھی PFI پر بین کی بات دیکھنے کو ملی۔ تب جا کر مجھے یقین ہوا کہ PFI پر ہی پابندی لگی ہے، ورنہ میں سمجھ رہا تھا کہ RSS پر بین لگا ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی تین بار RSS پر بین لگ چکا ہے۔ آئیے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ RSS پر کب اور کیوں پابندی لگائی گئی تھی۔ پہلی بار پابندی لگائی گئی تھی مہاتما گاندھی کے قتل کے موقع پر۔ 30 جنوری 1948 کو مہاتما گاندھی کو دہلی کے برلا ہاؤس میں ناتھو رام گوڈسے نامی ایک انتہا پسند دہشت گرد نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ اس قتل نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا، نہ صرف ملک بلکہ دنیا ہل گئی۔ اس واقعے کے بعد RSS کے لوگوں پر سازش کا شبہ ظاہر کیا جا رہا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 5 دن کے بعد یعنی 4 فروری 1948 کو حکومت نے RSS پر پابندی لگا دی۔ RSS کے اس وقت کے سرسنگھ چالک MS گولوالکر سمیت سنگھ کے کئی کارکنوں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ دوسری بار پابندی لگی ایمرجنسی کے دور میں۔ یہ 1975 کا سال تھا اور جون کا مہینہ تھا۔ مہاتما گاندھی کے قتل کے شبہ میں گرفتار کیے گئے بالا صاحب دیورس اب RSS کے سرسنگھ چالک بن چکے تھے، لیکن اس دور میں گجرات اور بہار سے شروع ہونے والی طلبہ تحریک نے ملک گیر شکل اختیار کر لی تھی۔ جے پرکاش نارائن اس تحریک کی قیادت کر رہے تھے۔ ریلوے اور ڈاک کی ہڑتال کی وجہ سے پورے ملک کی فضا پہلے ہی حکومت مخالف بن چکی تھی۔ دوسری طرف وزیر اعظم اندرا گاندھی بھی رائے بریلی کے انتخابی معاملے میں بری طرح الجھی ہوئی تھیں۔ اس معاملے میں الہ آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی ان کے خلاف گیا تھا اور ان پر استعفیٰ دینے کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ ان تمام حالات میں اپنے لیے کوئی راستہ نہ دیکھ کر اندرا گاندھی نے 25 جون 1975 کی رات کو ملک میں ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کیا۔ میڈیا کی آواز کو دبانے کی نیت سے 26 جون کو پریس سینسرشپ بھی نافذ کی گئی۔ تمام اپوزیشن لیڈروں کو گرفتار کیا جا رہا تھا۔ کچھ آزاد کانگریس لیڈروں کو بھی گرفتار کیا گیا اور ان سب کے ساتھ RSS کے سرسنگھ چالک بالا صاحب دیورس کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ طلبہ اور اپوزیشن کارکنوں کے ساتھ ساتھ یونین کے کارکنوں کو بڑی تعداد میں گرفتار کیا گیا۔ 4 جولائی 1975 کو RSS پر ایک بار پھر پابندی لگا دی گئی۔ تیسری بار پابندی لگائی گئی بابری مسجد کے انہدام کے بعد۔ 80 کی دہائی کے اوائل میں جن سنگھ، جو RSS کے سیاسی ماسک کے طور پر کام کرتی تھی، بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی BJP کے نئے اوتار میں ابھری تھی۔ پہلی بار BJP نے 1984 کے لوک سبھا انتخابات میں حصہ لیا، لیکن وہ صرف 2 سیٹوں پر ہی سمٹ کر رہ گئی۔ لیکن چند ہی سالوں میں یہ ایک بڑا مسئلہ بن گیا۔ فروری 1986 میں ایودھیا کے متنازع احاطے کا تالا کھول دیا گیا اور وہاں سے مندر مسجد کی سیاست شروع ہوئی۔ اس مندر مسجد مسئلے کے ارد گرد سیاسی خیمے بازی شروع ہو گئی اور یہیں سے BJP اور RSS نے مندر کا مسئلہ پکڑ لیا۔ 1986 سے 1992 کے درمیان اس معاملے پر بہت جھگڑا ہوا، تشدد ہوا، کتنے ہی لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس معاملے کی انتہا 6 دسمبر 1992 کو دیکھی گئی، جب ایودھیا میں جنونی افراتفری اور دہشت گرد لوگوں کے ایک ہجوم نے بابری مسجد کی عمارت کے گنبد کو گرا دیا۔ اس واقعے کے بعد بھارت کو بین الاقوامی سطح پر اپنے سیکولر تشخص کی فکر ہونے لگی۔
मुल्क में कई मकामात पर तशद्दुद शुरू हुआ और माहौल ख़राब होने लगा। इस वाक़ये में बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के साथ साथ आरएसएस के मुलव्वस होने की बात भी की गई। इसके नतीजे में उस वक्त के वज़ीर आज़म पीवी नरसिम्हा राव ने यूपी समेत 4 रियासतों की बीजेपी हुकूमतों को बर्खास्त कर दिया और 10 दिसंबर 1992 को इंहिदाम के वाक़ये के 4 दिन बाद आरएसएस पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। नाजरीन, तीन बार आरएसएस पर पाबंदी आयद की गई, लेकिन अलमिया ये रहा कि तीनों बार आरएसएस से पाबंदी हटा ली गई, जिसका खमियाजा आज तक मुल्क की दूसरी कौमें और आज की अपोजिशन पार्टियां भुगत रही हैं। आज भारत में जिस पार्टी की हुकूमत है वह आरएसएस की परवरदा पार्टी है, यानी भाजपा को हुकूमत की कुर्सी तक लाने में 100% मेहनत आरएसएस की ही रही है। जाहिर है कि हुकूमत के बहुत से फैसले भाजपा के अपने फैसले नहीं होते होंगे, बल्कि उसको पीछे से आरएसएस का इशारा मिलता होगा। इसी सिलसिले की एक कड़ी पीएफआई पर पाबंदी आयद करना है। वाज़ेह रहे कि आरएसएस और भाजपा के कई लीडरान पीएफआई को मुल्क के लिए खतरा बताते आए हैं, जबकि पीएफआई का दावा यह है कि मुल्क को पीएफआई से नहीं बल्कि आरएसएस और वीएचपी जैसी तंजीमों से खतरा है। खैर, अब सरकार ने पीएफआई पर बैन लगा दिया है। सरकार भाजपा की है और भाजपा किसकी है वह आप समझ सकते हैं। नाज़रीन किराम, हुकूमत ने पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उससे मुंसलिक दीगर तंजीमों पर 5 साल के लिए पाबंदी आयद कर दी है। मरकजी हुकूमत ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उसके साथियों और उससे मुंसलिक दीगर तंजीमों को फौरी तौर पर 5 साल के लिए एक गैर कानूनी गठजोड़ करार दिया है। वजारत दाखिला ने अपने इत्तिलानामे में कहा है कि पीएफआई, उससे मुंसलिक दीगर तंजीमें और उससे वाबस्ता लोग मुल्क में दहशत का गलबा पैदा करने के इरादे से पुरतशद्दुद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। इन तंजीमों में रिहाब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वीमेंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट और एम्पावर इंडिया फाउंडेशन शामिल हैं। इत्तिलानामे में ये भी कहा गया है कि हुकूमत की राय ये है कि अगर पीएफआई और उससे वाबस्ता दीगर महाजों की गैर कानूनी सरगर्मियों पर फौरी तौर पर काबू न पाया गया तो वो इस मौके को अपनी तखरीबी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल करती रहेंगी, जिससे अवामी नज़्म व नस्क में खलल पड़ेगा और मुल्क के आईनी निज़ाम को नुकसान पहुँचेगा। इत्तिलानामे में ये भी कहा गया है कि ये तंजीमें दहशत गर्दी पर मबनी क़दामत पसंद निज़ाम की हौसला अफजाई करेंगी और उसे लागू करेंगी। नीज़ वो मुल्क मुखालिफ जज्बात को उकसाती रहेंगी और मुल्क के खिलाफ बेइत्मीनानी पैदा करने के इरादे से समाज के एक ख़ास तबके को बुनियाद परस्त बनाती रहेंगी। इसके पेश नज़र वजारत ने कहा है कि ये लाजमी हो जाता है कि पीएफआई, उससे मुंसलिक तंजीमों, अफराद और महाजों को 5 साल के लिए फौरी तौर पर एक गैर कानूनी गठजोड़ करार दे दिया जाए। हाल ही में कौमी तफ्तीशी एजेंसी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और रियासती पुलिस ने कई रियासतों में पीएफआई की जगहों पर मुश्तरका कार्रवाई की थी और पीएफआई के बहुत से लीडरों और कारिंदों को गिरफ्तार किया गया था। आज ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि हिंदुस्तान की मौजूदा हुकूमत कोई सियासी जमात नहीं चला रही है, बल्कि उसकी बागडोर आरएसएस के हाथ में है। एक ऐसी तंजीम जो खुद को एक समाजी व सकाफती तंजीम कहती है, लेकिन बहुत से लोग ये भी जानते होंगे कि इस इदारे की कामयाबी का एक राज ये भी है कि इसने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन यानी इंदिराज नहीं कराया है। नागपुर की एक अम्बेडकरवादी तंजीम से वाबस्ता एक फर्द ने अपनी तंजीम को आरएसएस के नाम से रजिस्टर कराने की कोशिश की तो मामला कानूनी चाराजोई में उलझ गया। यही वजह है कि आरएसएस किसी भी हुकूमत को उसके अहदाफ, मकासिद और दायरा कार बताने और अपनी आमदनी और अखराजात का हिसाब देने का पाबंद नहीं है। उस पर मुसलसल सवालात उठते रहे हैं, लेकिन आरएसएस को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तंजीम की वेबसाइट के मुताबिक इस वक्त इसके मेंबरान की तादाद 68 लाख से ज़्यादा है। हालांकि ये उनका कोई सरकारी अकाउंट नहीं रखती। आरएसएस को पीएफ और ग्रेजुएटी का हिसाब भी नहीं देना पड़ता। तंजीम को चलाने के लिए फंड्स भी गैर रस्मी ज़राए से आते हैं, जिसे गुरु दक्षिणा कहा जाता है। ये अपने अंदरूनी हिसाबात रखता है, लेकिन किसी हुकूमत को अपना हिसाब देने का पाबंद नहीं है। ऐसे इदारे पर पाबंदी लगाकर आप क्या करेंगे? जिसका अकाउंट ही नहीं है उसका अकाउंट कैसे मुंजमद करेंगे?
चूँकि उसने गैर मुल्की अतियात वसूल करने के लिए कोई FCRA लाइसेंस हासिल नहीं किया है, इसलिए उसका लाइसेंस मनसूख नहीं किया जा सकता। जिस तरह से PFI जैसी रजिस्टर्ड तंजीमों पर पाबंदी आयद की जा रही है, तो क्या ये समझ लिया जाए कि अब हिंदुस्तान में आज़ादी अवामी तहरीक या समाजी काम का इम्कान सिर्फ रजिस्ट्रेशन वगैरह के झमेलों से गुरेज करके ही मुमकिन है? सवाल यह है कि क्या जिस तरह की वजूहात की बिना पर RSS पर बैन लगाया गया था, क्या उन जैसी वजूहात की बिना पर ही PFI पर भी पाबंदी लगाई गई है? तो इसका जवाब है नहीं। इसलिए कि अगर आप RSS की सरगर्मियों और उसके खुफिया कामों का जायज़ा लेंगे और उन बातों का जायज़ा लेंगे जिनकी वजह से RSS पर पाबंदी लगाई गई थी, तो आपके सामने ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि RSS पर जो पाबंदी लगाई गई थी वो बिल्कुल सही फैसला था। लेकिन आज PFI पर पाबंदी लगाई जा रही है तो लोग वजह नहीं जान पा रहे हैं कि आखिर इस तंजीम पर पाबंदी क्यों लगाई जा रही है। बिना दलाइल और बिना सबूतों के नौजवानों को उठाया जा रहा है, बगैर किसी जुर्म के उलमाए किराम को गिरफ्तार किया जा रहा है और बिना किसी बात के PFI और इस जैसी तंजीमों पर पाबंदी आयद की जा रही है, जो कि खुलेआम आज़ादी अवामी तहरीक और हिंदुस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी है। नाजरीन, बहुत से लोग RSS और PFI का तकाबुल करते हैं और एक दूसरी तंजीम का एक दूसरी तंजीम से मुआजना करते हैं। जैसा कि कुछ महीने पहले पटना के एक SSP ने ये बात की थी और उसके बाद उनके बयान को गोदी मीडिया ने खूब उछाला भी था। लेकिन जहां तक इन दोनों तंजीमों के मुआजने की बात है, तो हकीकत यह है कि PFI और RSS का कोई मुआजना है ही नहीं। RSS बिल्कुल अलग अहदाफ व मकासिद, अलग नज़रियात की तंजीम है और PFI के अलग अहदाफ व मकासिद और अलग नज़रियात हैं। तीन अहम बातें हैं जो इन दोनों तंजीमों के दरमियान हद फासिल हैं। नंबर 1, रजिस्ट्रेशन। PFI एक रजिस्टर्ड तंजीम है और वो हुकूमत, अदलिया, आइन और कानून की पाबंदी करने की पाबंद है, जबकि RSS एक गैर रजिस्टर्ड तंजीम है। अब आप समझ ही सकते हैं कि एक तंजीम जो रजिस्टर्ड ना हो वो अपने काम काज या आमद व रफ्त का हिसाब सरकार को क्यों देगी। नंबर 2, ये कि PFI एक आइन मुहाफिज तंजीम है जिसका मकसद हिंदुस्तान के आइन और संविधान को महफूज रखना और आइन मुखालिफ तहरीकों की मुखालफत करना है। यही वजह है कि PFI हथियारों की ट्रेनिंग नहीं देता, बल्कि फ़िज़िकल ट्रेनिंग में वर्जिश, दौड़, कराटा वगैरह की ट्रेनिंग ही देता है। जबकि RSS का मामला इसके बरक्स है। RSS के कितने ही ठिकानों पर हथियार बरामद किए गए हैं। RSS की तरबियत गाहों में खुलेआम तलवारों और बंदूकों की ट्रेनिंग भी दी जाती है। नंबर 3, PFI भारत की तरक्की के लिए तमाम मजहब के मानने वालों को उनके हुकूक दिलाने की बात करता है। PFI कभी भी मुस्लिम राष्ट्र की बात नहीं करता, ना ही वो अपने नज़रियात और तहजीब को दूसरों पर थोपने का कायल है। जबकि RSS के लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं और अपनी तहजीब को दूसरों पर ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश करते हैं। तो ये था RSS और PFI के दरमियान का वाज़ेह फ़र्क। PFI पर पाबंदी के बाद बहुत से लोग सामने आए हैं जो ये कह रहे हैं कि PFI पर पाबंदी गलत तरीके से लगाई गई है और ये संविधान का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। खुद लालू प्रसाद यादव जो RJD के लीडर हैं, उनका कहना यह है कि पाबंदी RSS पर लगनी चाहिए। इसके अलावा और भी लीडरान खुलकर सामने आ रहे हैं। सियासी लीडरान, मजहबी रहनुमा अब खुलकर सामने आ रहे हैं और PFI पर पाबंदी की मुखालफत कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, PFI पर पाबंदी के बाद आपकी क्या सोच है? आप क्या सोचते हैं? क्या PFI पर सही पाबंदी लगाई गई है? आपका इस बारे में क्या कहना है? आप अपनी बात को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक का बटन दबा दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सदाए हक न्यूज़, हक़ व सदाकत की बेबाक आवाज़।